आर्मी की शादी हुई। चलो सब 500 आओ तो ठीक है हाँ जी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਮੁੰਡੇ ਸਾਡੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਬੈਕ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ अच्छा ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਬ ਦੇ ਹੈ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜੰਗ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਾਰਗਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੜਾਈ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਚੱਲ ठीक ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਆ ਉਹ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਫਸਟ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਕੁਛ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁੰਡੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਜੰਮੂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਉਹ 7-8 ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਬੰਨ ਆਫ ਡੀ ਜੇ ਉਦੋਂ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀ ਕਰਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੌੜ ਭੱਜ ਕਰੀਏ ਤੇ ਵੀ ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਹੀ ਲਾਇਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਦਾ ਉਹ ਐਵੇਂ ਕੀਤਾ ਦਾ हाई कोर्ट गए कुछ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹਾਂਜੀ हाई कोर्ट गए ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀ ਕਿਤੇ अच्छा उधर की होया ਜੱਜ ਤਾਸ਼ੀ ਰਫਤਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੁੰਦਾ हैं ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਲਾਏ ਨਾ ਉਹਦਾ ਜੱਜ ਤਾਸ਼ੀ ਰਫਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਤਾਸ਼ੀ ਰਬਸਤਨ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਫੈਸਲਾ ਜੱਜ ਤਾਸ਼ੀ ਰਫਤਾਰ ਨੇ ਸਾਡਾ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਗਿਆ ਵਕੀਲ ਉਹਦਾ ਸੇਠੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਕਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਤਾਲਮੇਲ ਲਗਾ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੇਠੀ ਕੋਲ ਗਏ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਕਿੰਨੇ ਲੱਗੀ ਤੇ ਅਸਲ ਇਹ ਹੈ ਨਖੇਰਾ ਤੋਂ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਨਾ ਥੋੜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ 3600 ਮੁੰਡਾ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ कितने हो ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ 2-250 ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕਾਰਗਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੋਲੇ ਬਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਯਾਰ ਜਿੰਨੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕੋਈ 25-26 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਹਾਂ ਅੱਜ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਦੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਦੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਦੋਂ ਕੱਢਿਆ ਕੋਈ ਸੁਣਾਈ ਮੈਂ ਕੱਢਿਆ ਨਾ ਅੱਜ 25,000 ਦਾ 2025 ਕੋਲ ਸੁਣੀ 26 ਸਾਲ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇਹ ਉਹ ਲੱਗੇ ਨਾ 2017 ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਉਹ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਉਹ ਤੋਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜੱਜ ਤਾਸ਼ੀ ਰਫਤਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਫੇਵਰ ਦੇ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਬੈਨੀਫਿਟ ਇਹ ਵੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਗੇਟ ਕੀਤੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਰਮੀ ਵਕੀਲ ਆ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੋਰ ਡੀਵੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜੱਜ ਮੰਨੀ ਆ ਤੇ ਦੂਆ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੋਈ ਕਠੂਏ ਦਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤਾਲਮੇਲ ਥੋੜੀ ਆ ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਸਵੇਰੇ ਚੱਲੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਡੀਬੀ ਨੇ ਦੋ ਹੋਈ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਰ ਵੱਖਰੀ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਚ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਜੱਜ मेरा नाम है सर केवल कृष्ण 99 में जो करगिल वार हुई थी उस समय हमारी भर्ती हुई थी और हम भी उस लड़ाई का हिस्सा है तो हम अभी अपने फरूक साहब से उमर साहब से ये कहने आए थे उनको बताने आए थे कि इन गरीबों की फरियाद सुनी जाए जैसे कोई फौजी शहीद हो गया किसी को कोई परमवीर चक्र या किसी को पेट्रोल पंप का लाइसेंस दिया गया या किसी को गैस एजेंसी दी गई तो जो हमारे साथी थे जो वहाँ शहीद हो गए 7 लड़के उनके परिवार वालों की गवर्नमेंट की तरफ से एक बंदे को जॉब दी गई और जंग ख़त्म होने के बाद हमें एक कारगिल ऑपरेशन विजय का सर्टिफिकेट दिया गया और उसमें लिखा गया कि जब भी जम्मू कश्मीर में कोई भर्ती होगी सबसे पहले इनको फर्स्ट अपॉइंटमेंट दी जाएगी तो हम यही सेंट्रल गवर्नमेंट को पूछना चाहते हैं कि आपने 20-25 साल से कोई भर्ती नहीं आपने करी यही पूछना यही फरियाद लेके हम उमर साहब जी अपने सीएम साहब के दफ्तर में आए थे फरूक साहब को बताने आए थे कि जैसे दिल्ली भेजने वाला मसला है उसके साथ हमारा उनसे भी पहले का मसला है। आपके कितने लोग हैं और इतनी भर्तियां हुई उसके बीच में आपको एडजस्ट क्यों नहीं किया गया? सर ये तो इन गवर्नमेंटों का कसूर है हमें बुलाया नहीं गया इन्होंने बोला भी जम्मू कश्मीर में कोई भर्ती आएगी सबसे पहले फर्स्ट अपॉइंटमेंट आप लोगों को दी जाएगी तो हमें बुलाया नहीं गया। हम जब अभिनंदन का जाए पाकिस्तान में गिरता है तो तब इनको हमारी याद कैसे आ जाती है हमें कालें आती हैं सतवारी हेडक्वार्टर से कि आप तैयार रही जंग कभी उस युद्ध में आपका क्या सहयोग था? हमारा सर संयोग था आर्मी को मिनिशन पोस्टों पे पहुंचाना मतलब पोर्टल का काम हाँ पोर्टर का काम था पर इनके पास टाइम नहीं था ना इतना ट्रेनिंग देने के लिए अगर हमें बंदूक थमाते तो हम बंदूक चलाते हम बंदूक भी चलाते हम कोई डरपोक थोड़ी थे डरने वाले थोड़ी थे ऐसे दिलेरी बच्चे गए थे जंग में कोई भेजता है अपने बच्चे तब आपकी उम्र क्या थी तब आप सब लोगों की? कोई किसी की 21 साल थी किसी की 22 साल थी किसी की 20 साल थी किसी को कितने लोग थे टोटल? ये तो सर कभी कोई 3,500 6 बटालियन खड़ी हुई थी उस समय टांडा टाइगर फोर्स के नाम अखनूर में भर्ती हुई इधर अपना जम्मू में भर्ती हुई। आप कितने लोग थे जो पोर्टल के तौर पे गए थे जिन्हें अपॉइंटमेंट नहीं दी? सर इसमें कम से कम कोई 3,000 के करीब जो पोर्टर थे जो गए थे हर स्टेट से
जम्मू उधमपुर सांबा डिस्ट्रिक्ट कठुआ से। से, हाँ डिस्ट्रिक्ट से। इसमें लास्ट में क्या था, बाकी सभी लड़के भाग गए थे, डर के भागे थे, लेकिन हम जो इसमें 300-350 लड़का था जो डर के नहीं भागा था। हमने कहा कि हम देश के लिए मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन हम देश को जंग जिता के वापस आएंगे। जितनी भी ऊपर पहाड़ियाँ थी, कारगिल, द्रास, बटालिक सेक्टर जहाँ पे थे, हम वहाँ पे मुनीशन, खाने का सामान आर्मी के लिए, और उनकी जो डेड बॉडीज होती थी जो आर्मी की, वो हम नीचे उठा के अपने कंधे पे नीचे लाते थे। क्या आपको सैलरी पे रखा गया था क्या? सैलरी पे सर हमारा पूरा फिजिकल फिटनेस हुआ था, सिर्फ हमें एक बंदूक नहीं दिखी थी, बाकी पूरा आर्मी ने हमें फिजिकल फिटनेस दिया था सर। हमारा 36,000 का हमें सैलरी मिलती तो जब आपको सर्टिफिकेट वगैरह दिया उसके बाद क्या कहा गया था? उन्हें कहा कि आप घर जाओ, जैसे भी कोई भर्ती आएगी जम्मू कश्मीर के अंदर कोई भी आएगी, सबसे पहले हम आप लोगों को बुलाएंगे, आप लोगों को लिया जाएगा। लेकिन इतनी भर्तियाँ क्यों नहीं आपको? इतनी भर्तियाँ कितनी, जब भी हम जाते हैं सर हमें मना करते हैं, नहीं जी आपको नहीं रखेंगे, नहीं रखेंगे, यही कहते हैं बस। जो सर्टिफिकेट दिया गया था किसके द्वारा दिया गया था? वो हमारा जो इंचार्ज था कर्नल जैसा रणजीत सिंह जी थे, वो अपने इधर थे, उन्होंने दिया था हमें जी। और भी 3 लड़के जो हमारे साथ इधर आए हैं वो अभी कितने लोग हो आप? अभी हमारा कोई 350 लड़के हैं जो जम्मू उधमपुर सांबा कठुआ जी यही है सभी डिस्ट्रिक्ट? सभी जो लास्ट में वापस आए थे, जो 5 महीने के बाद लड़ाई जंग जीतने के बाद आए हम। अब लेकर आए हम जहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऑफिस में कि उमर साहब से यही विनती करेंगे कि हमारे लिए कोई ना कोई पॉलिसी सरकार की तरफ से बनाया जाए, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की। उनके आगे यही फरियाद करते हैं कि हमारे लिए कोई पेंशन या कोई जिनकी जो जॉब बची, जितनी कोई 10 साल 5 साल बची है, कहीं भी 4th क्लास में आगे हमें लगाया दिया जाए, या हमारे लिए कोई रिलीफ का तौर पर रखा जाए। हम यही फरियाद करते हैं। अगर उमर साहब हमारे लिए पसीना बहाएंगे, हम उनके लिए खून तक बहा देंगे, बस हमें ये चाहिए बस। देखिए आज ये आए थे ऑफिस में और मेरे से इनकी मुलाकात हुई, और ये बेचारे 20-25 साल से यही जद्दोजहद कर रहे हैं, और जो सरकारें सेंटर की हैं वो बस इनको दर बदर कर रही है, खजल कर रही हैं आगे पीछे। और ये वो लोग हैं जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी, और जो करगिल वार हुई उनमें जीत दिलाई, ये वो लोग हैं, और अपनी जान पे बाजी लगा के इन्होंने वो करगिल वार जिताई। और आज ये दर बदर हो रहे हैं। मैं बीजेपी लोगों से जो हैं यहाँ सेंटर में बैठे हुए हैं या जम्मू के जो बीजेपी के लीडर हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ ये कौन से लोग हैं? चाइना के हैं, पाकिस्तान के हैं, कहाँ के ये लोग हैं कि जो आज डिमांड कर रहे हैं? और ये जो बीजेपी कहते थे भारत माता की जय, वंदे मातरम, ये कौन सा वंदे मातरम और कौन से भारत माता की जय? भारत माता की जय होती है, भारत माता की जय वो होती है गरीब के पेट में नवाला हो, और ये पेट भरा जाए और मुंह में नवाला हो, और इन गरीबों की बात सुनी हो, इनके काम हो। और ये बेचारे देखो किसी की टांग को शरे लगे हुए हैं, किसी की पेट को लगे हुए हैं, और ये बीजेपी के लोग मुंह में दही जमा के बैठे। सरकार की तरफ से क्या कहा जा रहा है? एनसी सरकार की तरफ से? देखिए सरकार ये जो है ये जम्मू सरकार का कोई इसमें लेना देना नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन इसका ये लेना देना है सेंटर का, क्योंकि ये होम का है और आर्मी का है, आर्मी सेंटर के पास है, तो वो सेंटर वालों का मसला है। तो ये सिर्फ हमारे लिए यही आए थे फरियाद लेके कि हमारी आप बात कीजिए, ताकि आपको क्या लगता है लगभग जो हमारी सरकार है वो सेंटर से बात करे। लगभग 25-26 साल हो गए, क्यों नहीं इनका काम हुआ? जायज कई सरकारें आई हैं केंद्र में, देखो ना इंटरेस्ट नहीं लेते, वही तो मैं बोल रहा हूँ। जो भारत माता की जय वो ये इलेक्शन के लिए करते हैं, कुर्सी के लिए करते हैं, और तो इनके पास है ही नहीं कोई। आप हिंदू मुसलमान जब कर लो, इनके 1 मिनट में कर रहे हैं। अब आपकी तरफ से सरकार, एनसी सरकार या होम जो एडमिनिस्ट्रेशन या केंद्र सरकार की ओर क्या कहा जाएगा इनके साथ, क्योंकि आपके पास ये एनसी सरकार के पास आए हैं? हाँ ये डिमांड लेके आए हैं, यही है कि हमारी बात चीफ मिनिस्टर साहब से की जाए कि ताकि वो हमारी बात सेंटर से करें, और इन्होंने मुझे फ़ाइल दी है और मैं बात करूंगा, और इनकी बात कराएंगे, और फिर वो आगे इनको क्या यकीन दिलाते हैं वो वहाँ जाके बात चलेगी। और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं बिल्कुल इनके साथ कोशिश रहेगी कि इनका मसला हल हो जाए, और बेचारे ये जो दर बदर हो रहे हैं या ना हो, बेचारे इनको कुछ मिल जाए। देखो हर चीज़ के लिए पॉलिसी, और इनके लिए क्यों नहीं पॉलिसी, जिन्होंने हमारे देश के लिए जान दी है और जान देने के लिए तैयार थे और करगिल वार को जिताया है। मेरी तो यही कोशिश रहेगी कि इनका मसला हल हो जाए। मैंने सर लेटर भेजे थे, 5 लेटर डाले थे मैंने दिल्ली में। मैं एक डिफेंस मिनिस्टर को डाला था, एक प्रधानमंत्री को। यही रिक्वेस्ट है अभी उमर साहब जी आर्मी जनरल से बात करके हमारे जवाब को निकाले वहाँ से, और इन्हें गरीबों के लिए कोई ना कोई पॉलिसी बने और इनको कुछ ना कुछ बेनिफिट दिए जाए। या तो इनको पेंशन दी जाए, जहाँ जो जॉब बचती है वो इनको दी जाए, और जहाँ वन टाइम इनकी सेटलमेंट की जाए। अगर हमारे साथियों को लगा सकते हैं तो फिर इन लोगों को क्यों नहीं? इन्होंने कोई बुरा काम थोड़ी किया है, इन्होंने अपने देश के लिए अपना खून बहाया है, और उस समय साथ दिया जब हिंदुस्तान को ज़रूरत थी, तब उस समय साथ दिया था। आज इन गरीबों को ज़रूरत है तो हम कहते हैं भाई कहाँ हमारे लीडर हैं, हम इनका गरीबों का साथ दें। बस जय हिंद, जय भारत।
और मैं ये दिखाना चाहता हूँ, आप देखिए ये देखो, ये इनको शेरे लगे हुए हैं, ये टांग को लगी है, अगर इनके दिल में लगती, इधर लगती या मुंह में, ये तो बेचारे खत्म हो जाते। जी आप बताएं कितने कैसे लगी थी ये? हम उधर कारगिल में गए थे, द्रास होटल में उधर काम करने के लिए, उधर टाइगरिल पे जा रहे थे। तो उस टाइम हम 18 लड़के थे। 18 लड़कों में से एक लड़के की डेथ हो गई, एक मैं बच गया था, मेरे को छाली लगी थी। उसके बाद जब हम उधर से वापस आए तो मेरे को 92 बेस हॉस्पिटल में लेके आए थे। उसके बाद कमांडो हॉस्पिटल में मेरा 3 महीना इलाज चला। लास्ट में सीओ साहब ने बोला कि उसके जो मेरे पास डॉक्यूमेंट थे, असली जो डॉक्यूमेंट थे वो सीओ साहब ने लेके मेरे पास और फोटो स्टेट डॉक्यूमेंट पड़े हुए हैं। सीओ साहब ने बोला कि अब असली नहीं मिलेगी आपको। मैं एक और आपको बताना चाहता हूँ, ये देखो, ये हमारे जो जवान है, आप दिखाना एक मिनट, अपना पेट दिखाना। देखो पूरा पेट कटा हुआ है। ये क्या चीज़ हुई थी ये गोली लगी है इनको और ऑपरेशन शरे लगे हैं, ये पूरे शरे लगे हुए हैं और ऑपरेशन हुआ था, बड़ा ऑपरेशन हुआ था। ये हालत है, और इन लोगों को नहीं मिल रही तो किसको गवर्नमेंट बेनिफिट देगी बताइए ना? उन लोगों को बेनिफिट देगी। ये जो आप ये देख रहे हो, इतना पैसा लग रहा है, ये स्मार्ट सिटी के अंडर जो काम हो रहा है, 10 बार इन्होंने रोड गलियां बनाई हैं, 10 बार उखाड़ी हैं, टाइलें नाले बनाए हैं। तो उससे अच्छा है कि इन लोगों को, गरीबों को मदद हो जाए। ये ज़रूरी है या ये हमारी ये 10 बार इन्होंने टाइलें उठाई है? तो ये मैं यही सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा, होम मिनिस्टर और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर, इनकी बात सुनिए और इनका मसला हल करें। ये बेचारे क्या कितना बड़ा डिमांड कर रहे हैं कोई कि हमें पूरे हिंदुस्तान दे दो, ये छोटी सी है, ये तो दे ही सकते हैं। गवर्नमेंट होती किस लिए? इसीलिए तो आज ये आए थे हमारे पास, और मैं इन्हें यकीन ये फाइल इन्होंने मुझे दी है ये, और मैं इनसे यकीन दिलाया इनको कि ये बात मैं चीफ मिनिस्टर तक पहुंचाऊंगा, और चीफ मिनिस्टर से बात करूंगा और इनकी बात करवाऊंगा, और वो बात करेंगे सेंटर से, और जो भी इनका मसला होगा वो बात सेंटर को बात करेंगे। बताएं सर्टिफिकेट ऑफ सर्विस टू होम सोइल में कंसर्न। ठीक है।